امتیاز اینڈ برادرز منی ٹرانسفر، کالنگ کارڈز، گفٹ سینٹر اینڈ سیٹلائٹ تھوک پرچم، تمام چیزیں دستیاب ہیں۔ معیار کی ضمانت امتیاز برادرز۔ کالنگ کارڈ کے لیے فون نمبر 2103238714۔ ٹریول ایجنسی اور منی ٹرانسفر کے لیے فون نمبر 2103238971 اور گفٹ سینٹر کے لیے فون نمبر 2103310481۔ ایڈریس فوکلیئرز 53 ڈی امونیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تکبیر ٹی وی کے لیے پیام تکبیر لے کر میں راجہ طاہر محمود آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے، آپ زدہ خوش رہیں۔ تو ناظرین، جو لوگ بھی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ان کے ذکر کو بلند رکھے گا۔ تو اسی سلسلے میں جناب پیر سید سیدن شاہ صاحب صابری رحمۃ اللہ علیہ کلس شریف ان کے عرس مقدس کی تقاریب کا انعقاد جامعہ میریا نصیریہ ایونارگیو یونان میں کیا گیا۔ تو آئیے ملاحظہ کیجئے جناب پیر سید سیدن شاہ صاحب صابری علیہ رحمت کے عرس پاک کی چند جھلکیاں۔ جو بھی لبے مدینے چو لبدائے پلے بان لو کم دی گل میری مصطفیٰ دی یاد نہ چھڑیا جے، پلے بان لو کم دی گل میری مصطفیٰ دی یاد نہ چھڑیا جے، ایک پیر اجمیر دے گیت گاوو دوجا شہر بغداد نہ چھڑیا جے، تے کملی والے دی یاد نو چھڑ کے تے دل نو کر برباد نہ چھڑیا جے، او حافظ موے ناراض کوئی لکھ پاوے خبردار میلاد نہ چھڑیا جے۔ صابری صاحب وہ آئیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گل عقیدت پیش کریں، درود پاک پڑھیں سارے۔ قیمتی ٹائم اپنا چھڈ کے اور اس محفل پاک وچ شرکت جنا کیتی ہے، اور خاص کر میں احسان مانداں سیدی چشتی صف اول دے علماء اکرام خطیب اعظم اور الیاس قادری صاحب دا۔ صبر کرے تا ایرے پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ایرے۔ حضور قبلہ سیدن شاہ صاحب صابری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بچی حاضر ہوئی، عرض کرتے حضور میرا باپ مدینہ شریف گیا ہے، اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں، ہمیں علم نہیں وہ کہاں ہے، مر گیا زندہ ہے پتہ نہیں۔ آپ نے کچھ دیر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا، سر جھکانے کے بعد فرمایا بیٹی آپ واپس چلی جائیں، آپ کا باپ صحیح سلامت ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا، فلانے دن تمہارا باپ گھر واپس آ جائے گا۔ جب فرماتے ہیں کچھ عرصے گزرنے کے بعد اس کا باپ مولوی صاحب واپس آیا تو بچی عرض کرنے لگی ابا حضور میں اس دن اس وقت پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی تو مجھے پیر صاحب نے یہ بتایا، وہ مولوی صاحب کہنے لگا جو ٹائم تو مجھے بتاتی ہیں اسی ٹائم سرزمین مدینہ پر میں اپنے آنکھوں سے حضرت سیدن شاہ کو گزرتے ہوئے دیکھا تھا، سواری پر گزرتے ہوئے دیکھا تھا، اب گھر نہیں بیٹھتا، اب چلتا ہوں سیدن شاہ کی بارگاہ میں، وہاں سے کچھ حاصل کرتا ہوں۔ جب مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، مرشد کریم دیکھ کر تبسم فرماتے ہیں مولوی صاحب بتا تیرا کیا حال ہوا؟ عرض کرنے لگا حضور میں تو آپ کے پیچھے بھاگ رہا تھا، جب آپ مدینہ شریف تھے تو میں تو آپ کو پکارتا ہوا پیچھے سے بہت پکارا، آپ نے تو جواب نہیں دیا، آپ یہ بتاؤ مجھے جواب کس لیے عطا نہیں فرمایا؟ فرمایا میں نے تجھے جواب دینے نہیں آیا، میں تجھے دیکھنے آیا، تیری خبر لینے کے لیے آیا تھا۔ اللہ کے ولی کی نگاہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جناب خضر علی نبینا
अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या आता है। जब वो दीवार गिरने लगी, जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने हाथ के साथ उस दीवार को खड़ा कर दिया। जनाब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ खिज़र अलैहिस्सलाम, इन्होंने तो हमारी परवाह नहीं की, इन्होंने हमारी मेहमानी नहीं की, इन्होंने हमारी कदर नहीं की, तुम उसकी दीवार को सीधा कर दिया। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इल्म है इस दीवार के नीचे जो ख़जाना है मैं खिज़र देख रहा हूँ, और इस ख़जाने के मालिक इस घर के अंदर रहते हैं, वो मासूम बच्चे हैं। जब वो जवान हो गए, ये ख़जाना मैं खिज़र की डिप्टी है, मैं यही ख़जाना उसको अता करूँगा। मुस्तफ़ा करीम ये हदीस कुदसी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिब्रील जी रब्बे जलील, मुझे फलाने इंसान और बंदों के साथ मोहब्बत होगी है। हदीस के अंदर एक लफ्ज़ आया है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ करना था, या अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है, मोहब्बत तो तुझे होगी है, तुझे प्यार हो गया है उस इंसान के साथ, उसके साथ तू मोहब्बत करता है। मेरे खालिक और मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिब्रील मैं तो मोहब्बत करता हूँ, मैं यही तुम्हें बताता हूँ मैं किसके साथ मोहब्बत करता हूँ, किस लिए मोहब्बत करता हूँ। अब जा जिब्रील, मैं खुदा जिसके साथ मोहब्बत करता हूँ, तू ये बता उसके साथ तू मोहब्बत करता है या नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह जो तू हुक्म अता फरमाए। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील उस इंसान के साथ, उस मकबूल बंदे के साथ मेरा ताल्लुक़ हो गया, मुझे मोहब्बत होगी। अब तुझे भी हुक्म अता करता हूँ, तू भी उसके साथ मोहब्बत कर। जा तू आसमान वाले फरिश्तों के अंदर निदा कर दे, उनके साथ मोहब्बत करे। जमीन वालों फरिश्तों के साथ निदा कर दे, सब फरिश्तों के अंदर ऐलान कर दे, सब उनके साथ मोहब्बत करें। फिर जब जिब्रील ये अर्ज करता है तो फिर खालिक फरमाता है, फिर मालिक फरमाता है, रब जिन्होंने उनके साथ मोहब्बत ली, जिन्होंने उनके साथ मोहब्बत ली और प्यार किया, मैं खालिक और मालिक अल्लाह ताला फरमाता है, उस बंदों के वसीले के साथ, उन अल्लाह के मकबूल बंदों के साथ, ऐ जिब्रील जो उनके साथ मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनके साथ मोहब्बत करो। सैयदन शाह के साहिबजादे पीर सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब साबरी, ये भी बहुत आशिक रसूल थे, इल्म और मार्फत के बहुत मंबा थे, बहुत बड़ा रुतबा था, हुस्न जमाल भी बहुत था, इल्म भी बहुत था। फरमाते हैं, इतना मोहब्बत थी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उनकी दिल के अंदर, जहाँ मुस्तफ़ा करीम की महफिल होती, पीछे उनको किसी चीज़ का होश ना होता। जैसे जनाब इमाम मालिक का हाल था। किसी ने मुरीद ने आकर अर्ज़ की हुजूर हज़रत पीर गुलजार हुसैन साबरी को, हुजूर शमीम साबरी इस वक्त विसाल कर चुका है। रात का वक्त था, महफिल सवा थी, कवाली के अंदर बैठा हुआ जवान आशिक रसूल मुस्तफ़ा करीम के साथ मोहब्बत रखने वाला, जब हमको मोहब्बत हो तो फिर पता चलता है, ऐसे क्या पता चले। ये बात मोहब्बत की होती है, जिसके अंदर मोहब्बत आ गई है फिर उसको पता होता है। जब हुजूर की महफिल के अंदर अदब के एहतराम के साथ बैठा हुआ था, तो इश्क़ रसूल के अंदर बैठा हुआ था, किसी ने आकर कहा तुम्हारा साहिबजादा विसाल कर चुका है। फरमाते हैं उस पर कपड़ा डाल दो, अब हुजूर की महफिल में बैठा हूँ, ये अदब का खिलाफ है, इस महफिल को छोड़ कर जाना, नहीं जाऊँगा। जब महफिल ख़त्म हुई, तहज्जुद का नमाज का टाइम हुआ, नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद घर तशरीफ़ ले गए। जब देखा शमीम साबरी जब इस वक्त उस आस्ताने आलिया के गद्दी नशीन हैं, उनकी बात है, वो सो रहे थे, ऊपर चिट्टी चादर थी, आपने वही चिट्टी चादर उठाई, सीने पर हाथ फेरा, चेहरे पर हाथ फेरा, फरमाया बेटा शमीम साबरी, या हज़रत पीर गुलजार हुसैन शाह साहब साबरी के मुंह से ये बात निकली। अर्ज़ करता है, जी अब्बा हुजूर, जी अब्बा हुजूर। खड़ा हो गया इस्तकबाल करते हुए, तो किसी ने अर्ज़ की ये क्या राज है। फरमाया ये सब करम मुस्तफ़ा करीम का है,
सब करम हुजूर का है। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने बाजार के अंदर, मदीने की बाजार के अंदर किसी ने पूछा, ऐ इमाम मालिक ये फरमाएं ये हदीस मुस्तफ़ा करीम की सही है या गलत है? हजरत इमाम मालिक के आंखों के अंदर खून आ गया। फरमाया एक हदीस पूछता है, बाजार के अंदर पूछता है, आपने उसको थप्पड़ रसीद कर दिया, फिर आप घर चले गए। जब घर पहुंचे, गुस्ल किया, साफ सुथरे कपड़े पहने, आप कमरे के अंदर आ गए, उस कमरे को खुशबूदार कर दिया। फरमाया फलाने को लेकर आओ। हजरत इमाम मालिक के सामने जब बैठा, फरमाया उस हालत में बैठ जैसे नमाजी बैठते हैं, जैसे नमाजी बैठते हैं। ये हुजूर का फरमान। जब बैठ गया तो हजरत इमाम मालिक ने फरमाया अब पूछ मुस्तफ़ा की हदीस, अब बताता हूँ। सर झिका करते हुए, सर नीचे करते हुए अर्ज की, या इमाम मालिक ये फरमाओ मुस्तफ़ा करीम ने ये फरमाया है। हजरत इमाम मालिक ने हदीस पाक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बयान करने के बाद फरमाया ये हदीस सही है, मैंने मुस्तफ़ा करीम का फरमान है। फिर वही आशिक रसूल, फिर वही आशिक रसूल जिसने एक हदीस पूछी, सर नीचे कर बैठ गया। अर्ज करता है इमाम मालिक अब मुझे थप्पड़ रसीद भी करते रहो, हदीस मुस्तफ़ा भी सुनाते रहो। अब मुझे थप्पड़ रसीद भी करते रहो, हदीस मुस्तफ़ा भी सुनाते रहो। ये हदीस बयान करने वाले का ये मकाम होता है, हदीस पाक सुनने वाले का ये मकाम होता है, जिसके अंदर मुस्तफ़ा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत होती है, जिसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क होता है। तो जब हुजूर की हदीस बयान की जाती है, अल्लाह के फरिश्ते उस पर नाजिल हो जाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते ऊपर पर भी बिछाते हैं और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत मांगते हैं। अब हम यहाँ बैठे हैं, सैयदन शाह की मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के वली के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, ज़हन में बात बैठे हैं। जब यहाँ से फरिश्ते इस मेहरिया नसीरिया से रब की बारगाह में जाएंगे तो अल्लाह पूछेगा कौन कौन मानने वाले थे? अर्ज़ करेंगे मौला उसके अंदर कुछ तो मानते थे तेरे प्यारों को, कुछ नहीं मानते। मौला करीम फरमाएगा उनको मैं नहीं देखना, मैं तो देखना सैयदन साहब, सैयदन सरकार को देखना है। किसकी महफिल में आया, किसकी शान में आया? तो हाँ, यहाँ अल्लाह के फजल करम से पीरान पीर हुजूर किबला पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ भी रूहानियत है, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ भी रूहानियत है। ये तो वो मरकज़ है जहाँ सब पीरों की निगाह होती है, जहाँ सब पीरों का फैज़ मिलता है। पीरान पीर शहंशाह बगदाद हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुरीद जहाँ भी हो, अकीदतमंद हो, मोहब्बत रखने वाला हो, अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, पीरान पीर फरमाते हैं जब इंसान पर कोई मुश्किल आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, नमाज पढ़ने के बाद मेरा तसव्वुर लेकर मेरे रोज़े की तरफ 7 कदम चल, फिर 7 कदमों के बाद रब की बारगाह में अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता पेश कर, फिर देख तेरी दुआ रब की बारगाह में कबूल होती है या नहीं होती। अल्लाह खबरदार, इन्ना बेशक। अब यहाँ पहले खबरदार किया गया है, फिर आगे बेशक। खबरदार किस वक्त करते हैं? जब कोई ख़तरा हो, जब कोई मुसीबत आने वाली हो, जब किसी जा रहे हो यहाँ ख़तरा है, आगे नहीं जाना। मालूम हुआ आगे वाली आयत हम नहीं पढ़ सकते, ख़तरा है। किस चीज़ का हमें यहाँ ख़तरा हुक्म किया गया, किस चीज़ के लिए? सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुरीद जहाँ भी हो, अकीदतमंद हो, मोहब्बत रखने वाला हो, अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, पीरान पीर फरमाते हैं जब इंसान पर कोई मुश्किल आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, नमाज पढ़ने के बाद मेरा तसव्वुर लेकर मेरे रोज़े की तरफ 7 कदम चल, फिर 7 कदमों के बाद रब की बारगाह में अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता पेश कर, फिर देख तेरी दुआ रब की बारगाह में कबूल होती है या नहीं होती। अल्लाह खबरदार, इन्ना बेशक। अब यहाँ पहले खबरदार किया गया है, फिर आगे बेशक। खबरदार किस वक्त करते हैं? जब कोई ख़तरा हो, जब कोई मुसीबत आने वाली हो, जब किसी जा रहे हो यहाँ ख़तरा है, आगे नहीं जाना। मालूम हुआ आगे वाली आयत हम नहीं पढ़ सकते, ख़तरा है। किस चीज़ का हमें यहाँ ख़तरा हुक्म किया गया,
کس چیز کے لیے ہمیں یہاں ڈرایا گیا؟ تمہارے لیے خطرہ ہے یہاں تو اللہ خبردار، انما نہ بے شک، کس چیز کے انما نہ بے شک، لا لام نفی کی ہے، لام نفی جنس کی ہے، لا خوف، خوف مانا خطرہ، کسی چیز کا خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جن کو اللہ کے ساتھ محبت ہے، ان کو زمین پر اور آخرت کے اندر ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہاں جو ابتدا میں خبردار کا لفظ استعمال کیا گیا اس انسان کے لیے کیا گیا ہے جو انسان نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اللہ کرنے والا، نماز پڑھنے والا، تیرے لیے حکم ہے خبردار مت تو ان کی شان میں کہ گستاخی کریں، بے ادبی کریں، جو تو گستاخی کرے گا، بے ادبی کرے گا اور کچھ نہیں ہوگا، جو تو نے نیکی کی سب نیکی ضیاء ہو جائے گی۔